Good morning, dear students. Welcome back in your computer class. Today, I am going to discuss transmission media from your chapter 1. Transmission media means the media which can be transferred or transmit from one computer to another computer or from one device to another device is called transmission media. Many computers connected together to form a network, and in the network computers can exchange or share informations from one computer to another computer by using cable or in the connection of wireless connection. कंप्यूटर्स बहुत सारे जुड़ते हैं जिससे एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। उस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन सूचनाओं का आदान प्रदान या तो वायर्ड माध्यम से किया जाता है या फिर वायरलेस माध्यम से किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिंग अप अ नेटवर्क. Some of them are given below. First one is twisted pair cable. According to name, twisted pair means combination of two wires to form a single wire. It means जितने भी वायर होंगे वो दो वायर से मिलकर एक सिंगल वायर बने हुए होंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. एज यू कैन सी हियर, this is the twisted pair cable and this is also a twisted pair cable. It consists of a pair of insulating wires twisted together. ये जो twisted pair cable बने होते हैं इसमें पेयर ऑफ वायर होते हैं, दो वायरों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. द यूज़ ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, और इसमें एक दूसरे से ट्विस्टेड किए हुए होते हैं, हेल्प टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंस इन द सिग्नल्स. और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सिग्नल्स का डिस्टर्बेंस ना हो, यानी डेटा जो है वो अच्छे से ट्रांसमिट हो पाए, डाटा का लॉसेस ना हो और डाटा किसी भी तरह से बाधित ना हो. The twisted pair cable is often used in two or more pairs, all within a single cable. एक केबल के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल के बहुत सारे पेयर्स होते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, twisted pair cabling comes in two variants: shielded twisted pair cable or unshielded twisted pair cable. Unshielded twisted pair cable is most commonly used cable in computer network. हम लोग अधिकतर unshielded twisted pair cable का यूज़ करते हैं, जो कि आपका ये है. This one is the unshielded twisted pair cable. The twisted pair cable is often used in two or more pairs, all within a single cables. ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होते हैं वो बहुत सारे केबल्स पेयर होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं और एक सिंगल केबल का फॉर्मेशन करते हैं. ट्विस्टेड पेयर केबल कम्स इन टू वेरिएंट्स एज यू नाउ: shielded pair twisted pair cable और unshielded twisted pair cable. Next one is, as you can see here, this is shielded twisted pair cable which is covered by insulating materials, and unshielded twisted pair cable which is not covered by insulating materials. Next one is coaxial cable. Coaxial cable भी एक वायर ट्रांसमिशन मीडिया का एग्जाम्पल है. Coaxial cable is an electrical cable with an insulator at its center. As you can see here, this is the conductor at the center, which is copper wire, and the inner conductor is surrounded by a tubular insulating layers. As you can see here, this is the insulating materials surrounded to the copper wire, and the insulating layer is surrounded by a conductive layer called shield. शिल्ड जो है ना, ये कॉपर के बने हुए होते हैं, जालीनुमा होते हैं, गॉज टाइप होते हैं, और ये अराउंड होते हैं किसके? इंसुलेटिंग मटेरियल्स के, जिसे हम लोग कंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं. एंड देयरफॉर फाइनली द शिल्ड इज कवर्ड
with a thin insulating layers on the outside. As you can see here, this is the plastic sheet insulating layers which covers the wire completely to protect from the data losses. This is the coaxial cable. Next one is optical fiber cable. As you know that optical fiber cable is a cable in which data is transmitted in the form of light form. It consists of a central glass core surrounded by several layers of protecting materials. इसके अंदर एक सेंटर में एक ग्लास रड होते हैं जो कि प्रोटेक्टिंग मटेरियल से प्रोटेक्टेड होते हैं. इट ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ये इसमें डाटा का ट्रांसमिशन लाइट के फॉर्म में होता है. बिकॉज लाइट जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रेवल करते हैं, इसलिए डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है लाइट के फॉर्म में. दैट्स वाई ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डाटा का ट्रांसमिशन काफ़ी हाई स्पीड से करता है. ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल. ये जो है थोड़ा महंगा होता है कोएक्सियल केबल से और ट्विस्टेड पेयर केबल से. बट कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस. लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को भेजने का काम करता है. ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजेगा, साथ ही साथ काफ़ी हाई स्पीड होगी डाटा को ट्रांसमिट करने की. तो सबसे बेस्ट अगर वायर ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो वो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है. नेक्स्ट वन इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. एज वी नो दैट द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया वेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ वायर. ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें वायर की आवश्यकता न हो उसे हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे. ऐसे बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडिया हैं जो वायरलेस हैं, जैसा कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एंड मेनी मोर. फर्स्ट वन इज़ इंफ्रारेड. Infrared communication range of the device communication through the infrared wave is very limited. इंफ्रारेड जो होते हैं इसमें डाटा का ट्रांसमिशन जो होता है वो काफ़ी कम एरिया के लिए होता है. इंफ्रारेड वेव कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स. ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, आर पार नहीं जा सकते हैं सिग्नल्स. अदर ऑब्स्ट्रैक्शंस एंड so there should be no physical barriers between the communicating devices. इसलिए अगर आप इंफ्रारेड सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं तो उस दोनों डिवाइस के बीच में कोई भी फिज़िकल बैरियर नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास टीवी सेटअप है और साथ ही साथ आपके पास रिमोट है तो आप रिमोट को इन फ्रंट ऑफ टीवी ही ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये इंफ्रारेड सिग्नल के थ्रू वर्क करता है. अगर आप किसी दूसरे रूम से रिमोट एक्सेस करते हैं तो वो सिग्नल टीवी तक नहीं पहुंच पाएगी और टीवी जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो कम एरिया के लिए होता है, उसका रेंज कम होता है और ये पेनिट्रेशन पावर इसमें नहीं होती है, वॉल को ये पेनिट्रेट नहीं करता है. इस वजह से सिग्नल जो है वो एक रूम से दूसरे रूम नहीं जाया जा सकता है बाय यूजिंग रिमोट और टीवी. Next one is microwave transmission. This is also an example of wireless transmission media. Microwave transmission are unidirectional, mean to say they can be used for terrestrial communications or for satellite communications. इसमें जितने भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा वो अर्थ के सरफेस पे होगा या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा. माइक्रोवेव प्रोपेगेशन इज़ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, मीन टू से कि इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, यानी जैसा सिग्नल जाएगा वैसे ही लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपका डाटा का ट्रांसमिशन होगा. सो व्हेन वी यूज़ for terrestrial communications, the tower and antenna mounted on them need to be direct sight to each other. The antenna are usually located at the substation highest above the ground level to extend the range between the antenna and the able to transmit over the obstacles. Mean to say कि ये जो
माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है ये एकदम लाइन ऑफ साइट होता है, यानी एकदम स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। स्ट्रेट पाथ कहने का मतलब है कि अगर एक टावर है, एक एंटीना है, तो आपका दोनों टावर और एंटीना एक स्ट्रेट वे में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, तभी डाटा का ट्रांसमिशन टावर टू एंटीना या फिर एंटीना टू टावर हो पाएगा। तो इसलिए देखे होंगे आप कि जो भी टावर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी हाईली हाइट पे होते हैं, ताकि वो डाटा का ट्रांसमिट कर सके स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट पे, और कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन स्पेशली जो यूज़ किए जाते हैं वो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम द अर्थ एंड एनी अदर डिवाइसेस इन द एटमॉस्फेयर कंट्रोल बाय द स्पेस स्टेशन और अर्थ स्टेशन। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यू कैन सी हियर, दिस इज़ द फिगर ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस। यहाँ पे डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है और यहाँ पे भी आपका एंटीना है जिसमें आपका डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है माइक्रोवेव फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। एज वी नो दैट रेडियो वेव ट्रांसमिशन इज ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मीन्स हर डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में। सोर्स से जब ये सिग्नल को इमिट करता है तो ये एक रेंज है, एक रेडियस है, जिस रेडियस के टोटल एरिया में इसके सिग्नल्स जो है ना वो फैल जाते हैं, और जितने भी डिवाइसेस होंगे उस एरिया में वो सारे डिवाइस उस सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ताकि वो उसे रिस्पॉन्स कर सके। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन जो है ना वो ओमनी डायरेक्शनल है, यानी जहाँ से वो निकलेगा वो चारों साइड ऑल डायरेक्शन में जाएगा। दैट द ट्रांसमिट एंड रिसीवर डू नॉट हैव टू बी केयरफुल अलाइन फिजिकली। ऐसा कोई केयरफुल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइस को, ऑल डायरेक्शनल में इसके सिग्नल्स जाते हैं तो वो किसी न किसी डायरेक्शन से वो एक्सेप्ट कर लेगा। रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट, ये काफ़ी आसान है जनरेट करना। कैन ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस एंड पेनिट्रेट थ्रू द बिल्डिंग्स ईजिली, इसे आसान है जनरेट करना, ये काफ़ी लंबे दूरी तक जा सकता है, साथ ही साथ इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी ये बिल्डिंग के अंदर भी जा सकता है, बिल्डिंग के अंदर, रूम के अंदर, कहीं भी ये सिग्नल्स जा सकते हैं। ये आपका रेडियो वेव। सो दे आर वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बोथ इंडोर एंड आउटडोर्स। इंडोर्स यानी घर के अंदर भी आप इसके सिग्नल्स का कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूज़ करके, और आउटडोर्स भी सिग्नल्स को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाउएवर एट ऑल फ्रीक्वेंसीज रेडियो वेव्स आर सब्जेक्ट टू इंफ्रारेड फ्रॉम मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी जो हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में अवेलेबल होते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है मोटर्स को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी ऑपरेट करने में, कंट्रोल करने में, चलाने में। एज यू कैन सी हियर रेडियो वेव एंटीनाज, दिस इज़ द रेडियो वेव एंटीनाज स्पेशली यूज्ड बाय नेवी डिपार्टमेंट। नेवी डिपार्टमेंट भी इसका यूज़ करती है सिग्नल्स को कैच करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। Everyone know about Bluetooth. Bluetooth is the technology which is used to share informations from one device to another device, exchanging informations from one device to another device. Its range is 30 feet approximately, and beyond the 30 feet the Bluetooth cannot work properly between two mobile phones or devices. There are many devices use Bluetooth technology like Bluetooth headphone, Bluetooth earphone, earbud, and many more devices are example of Bluetooth technology which helps these technology to access. Next one is Wi-Fi technology. As you know that Wi-Fi means wireless fidelity. It is a mode of transmission where data can transmit from one device to another device. वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस फाइल्स को शेयर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ब्लूटूथ और वाईफाई ये दोनों भी आपका रेडियो वेव के ही एग्जांपल हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन करते हैं ये। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर एनर्जी बट इनेबल द सिग्नल्स सो टू गुड टू गो फार्दर 300 फीट्स अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी है इसके रेंज जो है वो 300 फीट्स तक होते हैं with a fast rate of transmission. This technology is used to set up network in which the computer's wireless adapter transmit the data into radio signals and transmits it further ahead.
रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज यूज़ करता है, इन सारे डेटा को वो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, देन आफ्टर उसे वो ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओवरऑल कहें तो वाईफाई, ब्लूटूथ दोनों रेडियो वेव बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं जो फाइल को शेयर करते हैं वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो वाईफाई के लिए आप देख सकते हैं शेयरिट है, एक्सेंडर है, मेनी मोर एप्लीकेशंस आर अवेलेबल टू शेयर फाइल फोल्डर्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। Here is an example of wireless router receive the signals, decode and send it to the internet using the wired connections। अब देखो डिकोडिंग और इनकोडिंग दो चीज़ें हैं। डिकोड मीन्स क्या होता है, रिसीव सिग्नल्स को कन्वर्ट करना ओरिजिनल डेटा में, और इनकोडिंग मीन्स होते हैं ओरिजिनल डेटा को कन्वर्ट करना सिग्नल्स में। तो इनकोडिंग होता है सेंडर के पास, डिकोडिंग होते हैं रिसीवर के पास। So don't be confused. Decoding happen at the receiver end and encoding happened at the sender end. ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें आपका NIC कार्ड है। अच्छा, एक वाईमैक्स भी रह गया है। वाईमैक्स भी जस्ट वाईफाई की तरह ही है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को ट्रांसमिट करता है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। वाईमैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, एज यू कैन सी हियर। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी डिवाइसेस लाइक NIC कार्ड, स्विच, hub, router and many more. Thanks for watching.